Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. Today we are going to study geometry of standard 10, chapter 2, Pythagoras theorem. In this chapter, first of all, we are going to study Pythagorean triplets. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि Pythagoras theorem it belongs only to right angle triangle. जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल होगा वहीं आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स. इसको ध्यान में रखिए अच्छी तरह से. इस चैप्टर में पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ने जा रहे हैं. ट्रिपलेट्स देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स मैंने दिए. ट्रिपलेट्स तो हैं, क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. इसको पहचानना. किनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं? ऐसे नंबर जिसमें लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, देखिए इसमें 3 है, 4 है, 5 है. लार्जेस्ट नंबर इज 5. इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 numbers, then these 3 numbers are called Pythagorean triplets. Okay? If the square of largest number is equal to the sum of squares of remaining 2 numbers, then these 3 numbers are called Pythagorean triplets. Largest number है यहाँ पर 5. देखिए 5 square, square of largest number 25. अब हम देखते हैं रिमेनिंग 2 नंबर्स 3 and 4. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. अब इनका अगर सम करना है 9 plus 16 is equal to 25. तो स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर 25 था. रिमेनिंग जो 2 स्मॉल नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम भी 25 आ रहा है. ऐसा अगर होता है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वी कंक्लूडेड दिस इक्वेशन. इन दिस केस वी कैन से दैट numbers 3, 4 and 5 are Pythagorean triplets. Let's take another example by taking 3 numbers 5, 12, 13. Let's see whether these numbers are Pythagorean triplets or not. Which one is largest number? 13. What is the square of 13? 169. And square of 5, 25. Square of 12, 144. Add these 2 squares. By adding these 2 squares, you will get 169. It means here also we found 13 square of largest number is equal to the sum of squares of remaining 2 numbers. Therefore, these 3 numbers 5, 12 and 13 are Pythagorean triplets. Okay? ये कंसेप्ट अभी आपका क्लियर हो गया. किनको Pythagorean triplets हम कहते हैं? बड़ा जो नंबर होगा उसका स्क्वायर और बाकी 2 नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर का सम इक्वल होता है, तो वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. देयर इज अ थ्योरम. व्हाट डज थ्योरम स्टेट्स? The statement is, in a right angle triangle, if the altitude is drawn
to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Look into the figure. In a right angle triangle ABC, the altitude BD is drawn on the hypotenuse. By drawing this altitude, the original triangle ABC is divided into two triangles. Those are triangle ADB and triangle BDC. What does theorem say? Theorem says each triangle, that is triangle ADB, is similar to original triangle ABC, and triangle BDC is also similar to original triangle ABC, and these two small triangles are similar to each other. Okay, let's prove this theorem. In proof, you have to write first given. What is given here? In triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Means it is a right angle triangle. BD is perpendicular to AC hypotenuse. BD segment altitude is perpendicular on hypotenuse AC. ADC are collinear and point D lies in between points A and C. To prove, what to prove here? First, triangle ADB is similar to triangle ABC, original triangle, and second, triangle BDC is similar to original triangle ABC, and these two triangles ADB and BDC, these two triangles are similar to each other. Proof. First we will take these two triangles, triangle ADB and triangle ABC. पहले हम ये दो triangles लेते हैं. चलिए इन दो triangles को हम सिमिलर प्रूव करते हैं. सिमिलर प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर जो टेस्ट ले रहे हैं सिमिलरिटी का, वो एंगल टेस्ट है. बहुत इजी है. ट्राइंगल ADB में एंगल D मीन्स एंगल ADB is congruent to angle ABC in triangle ABC. तो ट्राइंगल ADB में एंगल ADB और ट्राइंगल ABC में एंगल ABC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज these are of 90 degree. और एक कॉमन एंगल लेते हैं, एंगल A. स्मॉल ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे एंगल BAD, एंगल BAD, और बड़े ट्राइंगल में देखेंगे एंगल BAC. ये कॉमन है. This is common angle in both triangles. दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों में एक एक कॉमन एंगल है. भले उनके साइड्स छोटी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन कॉमन एंगल है. बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, both triangles ADB and triangle ABC are similar to each other. This is equation 1. Similarly, we can prove triangle BDC is similar to triangle ABC. समझ में आ गया आपके? पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स को लिया, फिर उनके दो एंगल्स की फेस को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, फिर एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए. ओके, नाउ वी विल टेक ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में 90 के एंगल्स कौन से हैं?
और कॉमन एंगल्स कौन से? 90 एंगल्स देखिए, अब की बार हमने लिया है ट्रायंगल BDC। BDC में BDC खुद है और ABC में एंगल ABC 90 का है। नेक्स्ट कॉमन कौन सा है? यहां पर C कॉमन है इस छोटे ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में। C इज कॉमन। छोटे ट्रायंगल में जाएंगे तो DCB और बड़े ट्रायंगल में जाएंगे तो ACB। These are common angles. By angle test, triangle BDC is similar to triangle ABC, and this is now equation 2. अल्टीट्यूड के खींचने के बाद जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, छोटे ट्रायंगल्स, वो ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर हैं। हमने इक्वेशन 1 में एक बात बता दी और इक्वेशन 2 में एक बात बता दी। From equation 1 and 2, from equations 1 and 2, it is clear that both small triangles are similar to original triangle, then both are similar to each other. A, D, B is similar to triangle B, D, C. तो तीनों स्टेटमेंट्स को हमने प्रूव कर दिया। तो ये था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम। इसको अच्छी तरह से याद रखें, इसकी प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स बुक्स में इसको लिख कर निकालें। लेट्स स्टडी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त यूटिलाइज होती है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? What does it states? In a right angle triangle, right angle triangle देखिए यहाँ पर ABC है। The perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which hypotenuse is divided. मुख्तसर बताऊंगा मैं आपको क्या ये कहना चाहता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पर जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, वो परपेंडिकुलर यानी यहां पर BD, उन दोनों सेगमेंट्स का AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन होता है। BD is geometric mean of segments into which hypotenuse is divided. Means BD is geometric mean of segment AD and segment DC. इसको हमें प्रूव करना है। प्रूफ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन right angle triangle ABC, BD is perpendicular to hypotenuse AC। लास्ट जो हमने थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल BDA, ट्राइंगल BDA is similar to triangle CDB। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, वर्टेक्स B से अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे एक ट्रायंगल के लिए, और एक ट्रायंगल के लिए बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। पहला ट्रायंगल देखिए मैंने कैसे लिया है, ट्रायंगल BDA, वर्टेक्स B से अंदर से बाहर की तरफ चला गया BDA, और दूसरे के लिए बाहर से अंदर की तरफ CDB। इस तरह से 1:1 करस्पॉन्डेंस कायम रहती है। ये कैसे हुआ?
दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर क्यों हैं? बाय यूजिंग सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके प्रोपोर्शनल साइड्स हम लिखेंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो उनके साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। ठीक है, पहले लेते हैं BD अपॉन CD, फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड। दो ही रेशियोज काफी हैं। फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड। BD अपॉन CD इज इक्वल टू DA अपॉन DB। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? BD इंटू BD, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू CD। अगर किसी सेगमेंट का स्क्वायर बाकी दो सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है तब हम कहते हैं जिसका स्क्वायर है वो सेगमेंट बाकी दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। अगर हम 3 नंबर लेते हैं जैसे 4, 6, 9, अगर हम 3 नंबर्स लेते हैं, देखिए बीच का नंबर 6 है, 6 का स्क्वायर 4 और 9 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। 36 इज इक्वल टू 36। समझ रहे हैं बात को? 4, 6, 9 3 नंबर्स मैंने यहां पर लिया है। अलजेब्रा में आपने सीखा होगा 6 का स्क्वायर बाकी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। 6 का स्क्वायर भी 36, 4 9 जा 36। तो तब हम कहते हैं कि 6 जो है मीन है किसका? 4 और 9 का। अब यहां पर सेगमेंट्स की बात हो रही है तो BD का स्क्वायर DA और CD के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो हम कहेंगे BD इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट्स DA एंड CD। वही यहां पर थ्योरम में कहा गया था। फर्स्ट यू हैव टू टेक 2 स्मॉल ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर बाय यूजिंग सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, देन टेक their ratios of sides, 2 ratios. By cross multiplication you will get BD square is equal to DA into CD. Okay, this is theorem of geometric mean. You have to remember this property can be used to solve many problems of the exercise. Inshallah, in next video we will prove Pythagoras theorem, the main theorem. What does it say? Pythagoras theorem says the square of hypotenuse in a right angle triangle is equal to the square of sum of other two perpendicular sides. ये थ्योरम पाइथागोरस का थ्योरम है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। उसके बाद इन तीनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 2.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। यू हैव टू अटेंड ऑल दिस सेशंस, ऑल यू हैव टू वॉच ऑल दिस वीडियोस इन्हीं तवक्कात के साथ कि आप बखैर होंगे और बहुत ही सेफ रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे और भरपूर स्टडी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।